ऑल राइट, तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। कॉन्करिंग फियर। हाँ जी, तो कौन सी बात करना चाहेंगे? आकृति जी आपके लिए। हाँ, sure. Conquering fear. Fear is the portal to all lower emotions. It is the highest state of consciousness for the instinctive mind. Therefore, it is the doorway to all lower states as well. If worry is a mental tug, fear is the godfather, the mob boss of all lower emotions that terrorize the mind. एक बार फिर से पढ़ते हैं. Fear is the portal to all lower emotions. It is the highest state of consciousness for the instinctive mind. Instinctive mind का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? Any idea? एक तरह से जो प्रिमिटिव माइंड है वो इंस्टिंक्टिव ही होता है, मतलब वो सोच समझ के कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो रिएक्ट कर रहा है। Okay, okay. जैसे फियर हमारा इंस्टिंक्ट है, इस तरह से। It is the doorway to all lower states as well. If worry is a mental tug, fear is the godfather, okay, the mob boss of all lower emotions that terrorize the mind. In close examination, one will find that fear, like worry, is a result of awareness going into the future, creating a situation in a mind that has not happened, then returning to the present and fearing it. Allow me to elaborate. It is a pitch dark night, and you find yourself walking down a dingy, lonely, unlit street in a dodgy part of town. The sound of your boot heels hitting the road is the only thing that shatters the eerie silence. Why you are here, we are not quite sure. The weather is brisk, and you cross your hands in front of you and rub your bare arms. You begin to wonder if you are starting to feel afraid or just cold. Your awareness walks ahead of you in your mind about 50 paces to an abandoned vehicle parked on the side of the road. In a flash, it conjures up a scene of disheveled, disheveled looking man leaping out at you from behind the car. Barely is that scene over than awareness races back to the present. The fabricated scene is fresh in your mind, and a cold shiver runs down your spine. Fear grips you. You slow your stride and cautiously walk forward. So basically, author is saying, just asking us to visualize कि हम एक street पे जा रहे हैं, वहाँ पे sort of सुनसान street है, and suddenly you start thinking कि मतलब you get a thought कि उस कार में से कोई आकर के आपको कोई है जो who can sort of kidnap you, तो you will get मतलब डर जाओगे. तो yeah, so the fear you are experiencing now triggers a memory in your subconscious that is vibrating at the same frequency. Your awareness is immediately drawn to the memory of a movie you once saw where a woman was walking down a dark street and was ambushed by a gang of zombies who proceeded to maul her to pieces. The fear you experienced watching that scene is rekindled, and awareness is catapulted into the future again, this time imagining zombies lurking in the shadows of the scary street, waiting to pounce on you and recreate that gory scene. Awareness, now unhinged, goes back and forth between the present and the future, conjuring up more petrifying scenes out of sheer fear, pushing you to the fringes of your sanity. You can't decide if you should run or just crumple to the ground in tears. There are a few things to take note of in this fictitious story involving you. Firstly, what plays out in the mind in fear is no different than in worry. Fear, like worry, is future based. You can't fear the past. The past has happened, and there is nothing that can be done about it. Though we can fear the repercussions of our past actions that may manifest in the future.
At the core of the eternity of the moment, you are pure energy that cannot be created or destroyed. Fear does not and cannot exist here. In the eternity of the moment, you are always all right now. The only place fear lives is in the future. Anyone will like to share anything over here till now? Or shall I continue? Yes, you can. When our willpower and powers of concentration lose their grip on awareness, we essentially throw awareness to the wolves. The longer we leave awareness out in the wild, so to speak, unchecked and unharnessed from our will, the more we subjugate it to our environment and our subconscious. In the case of this story, the environment started to dictate where in the mind awareness went. The environment started to dictate where in the mind awareness went. So basically, the longer we leave our awareness out in the wild, we leave it free, we don't check it, keep a check on it, then these kind of emotions start coming in. As you can see from the story, not only was the eerie street causing fear, but the subconscious can wreak havoc on the mind as well. Past experiences in the subconscious that have not been dealt with can cause awareness to repeatedly experience fear. This is important. So, whatever past experiences that we have in our subconscious, which we have not dealt with, and it's just stored over there, they can cause awareness to repeatedly experience fear and can cause phobias and other kind of things going forward. Reliving these emotions of fear only causes them to compound upon one another, creating stronger patterns of fear in the subconscious. You could call it the wheel of fear. This eventually becomes the dominant force in one's mind and cripples a person from taking any action in life that is outside the safe and narrow norm. इसमें एक बात ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू आता है तो ये कहा जाता है हमेशा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या हुआ है, क्या रहा है। चाइल्डहुड में बहुत सारी बातों को देखते हैं, तो चाइल्डहुड के ट्रॉमा ऐसे होते हैं जो जिनको डील नहीं किया गया है, जिनको कोई रेमेडी उसकी हुई नहीं है, तो फिर वो रहता है सालों साल। तो व्हील ऑफ फियर या साइकिल ऑफ विशियस साइकिल ऑफ फियर ऐसे हम कह सकते हैं, और वो कंपाउंड भी होता जाता है। ये भी इसमें इंटरेस्टिंग बात है। Yes, because of this. Because of this, it is really important that we be conscious of what we impress our subconscious with. I'll circle back to this shortly. As with worry, bringing awareness back to the present is the key to overcoming fear. When awareness is back in the present, we have the opportunity to solve this problem. In the case of this story, when awareness is anchored in the here and now, in the present, it can perhaps decide to choose an alternate route, to call a friend or a car service to come pick you up, or to find other alternatives to avoid the experience of walking down that street. But if you leave awareness unharnessed and allow it to go into the future and create situations in your mind that cause you fear, you put yourself in a mental state of being absorbed in the fear. The fear state of mind has no capability to make rational decisions. In Hindu metaphysics, which I was trained in and which this book is based on, if you were to look at the mind as a multi-story building where each floor is a state of mind, you would see that reason resides 2 floors above fear.
If you are on the fear level of the mind, you would have no capacity to reason. And if you were totally immersed on the reason level of your mind, you would simply reason yourself out of fear. If you were living in a multi-story apartment building and someone was living 2 floors above you, you would not be able to communicate with them without assistance of some device. What they experience on that floor would also be different from what you experience on yours. Your perspectives would also differ. Shall we बहुत do this ही बहुत ही again? मुझे समझ पावरफुल नहीं आया. हाँ? बहुत ही पावरफुल मेटाफर है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, मतलब Shall कितना we इंटरेस्टिंग है। do this again? मुझे समझ नहीं आया. इसने जी आप इसे शेयर करना चाहेंगे अपने वर्ड्स में? जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर फियर, जैसे आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे फियर है और आपका जो रीजनिंग है जिसके जो आप अगर फियर है तो उसको रीजन आउट करके हम जैसे वरी के लिए रीजन आउट कर सकते हैं, राइट? तो वो 2 फ्लोर अबव है। तो मतलब अगर सपोज, और डिफरेंस भी हो सकता है वहाँ एम्यूनिटीज की भी, तो अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे पर्सपेक्टिव की बात है। तो यहाँ फियर के सिचुएशन में आपको पर्सपेक्टिव भी समझ में नहीं आ रहा है, वही सिचुएशन इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमने उस पर डिपेंडेंट बना दिया। अवेयरनेस इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, वी हैव थ्रोन इट आउट। तो उसमें पर्सपेक्टिव जो वहाँ उस लेवल पे होगा 2 स्टोरी अबव, वो अलग होगा। वहां पे व्यू अलग होता है ना, थोड़ा सा बर्ड आई व्यू वाला, और अब ऊपर से ज्यादा चीजें अच्छी दिखती है, तो वो व्यू का भी आ जाता है, आई गेस। हाँ, मतलब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि वो, जैसे माइंड एक इंटेंजिबल थिंग है, तो कैसे लोगों को समझाएं। तो उसे टेंजिबल करने के लिए उन्होंने मेटाफर यूज़ किया कि सपोज माइंड एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें आपके माइंड में फियर कहाँ पर है, रीजन कहाँ पर, लॉजिक कहाँ पर है। तो लॉजिक और रीजन तो है ऊपर की स्टेट्स में, फियर है बिल्कुल नीचे नीचे है। अब जब फियर वाले अवेयरनेस में हो, आपको ऊपर जाना है, तब कैसे जाओगे? तो यू नीड सम डिवाइस। शायद वो उस डिवाइस के बारे में बात करें कि वो क्या है। Fear is not always a bad thing. We live in a physical body, and that body is tied to our instinctive mind. That is the animal nature of us, and it can sense an actual threat or danger, which then brings out about a sense of fear in us. So at times, the fear we experience is a self-protective mechanism. If we heed this sign, we can use it to avoid harmful experience. But if we allow that fear to grow and dominate our awareness, that is when things start going to hell in a handbasket. तो जैसे कहीं कहीं लिखा होता है ना, डरना जरूरी है। कहीं लिखा होता है डरना मना है, कहीं लिखा है डरना जरूरी है। तो डरना जरूरी है वो वाला ये है कि द फियर वी एक्सपीरियंस इज ए सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। बिल्कुल ही डरना हो तो फिर हम कैसे एक्शन लेंगे? फिर तो हम कहीं भी कूद जाएंगे। तो फियर के कारण ही हम अलाइव है, Right. लेकिन वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। यस, प्रोटेक्टिंग द माइंड। इसने जी आप कंटिन्यू कर सकते हाँ जी। Protecting the mind. There are people who enjoy watching scary movies. They revel in the experience of having their awareness taken to the fear area of the mind and experiencing all levels of fear. As you know now, the consistent repetition of this experience causes a deep groove, a well trodden path to be built to the fear area of the mind. Vast amounts of energy are deposited here as well, causing this area to be highly magnetic and to have a significant pull over awareness. Should one find oneself on a scary street at night, prompting awareness to move to the fringes of the fear area of the mind, it would be very easy for awareness to slide into the established deep groove and be pulled by the strong magnetic force into the heart of fear area of the mind. Awareness responds differently to being on the scary street from the fear area of the mind than it would from an uplifting area of the mind. तो मतलब हमने क्योंकि बार बार वो कंसिस्टेंटली
फियर वाली मूवी देख के, अगर स्कैरी मूवीज देखी है तो वो डीपली ग्रूव फियर का ग्रुप बन जाता है, और उसकी वजह से अगर वैसी सिचुएशन में आप खुद आते हो तो द अवेयरनेस टेंड्स टू स्लिप डाउन इन दैट फियर एरिया, and it will be a totally different experience than if it was in an uplifting area of the mind. ओके, इसमें अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि व्हाट इज माइंड, हाउ कैन वी डिफाइन माइंड, तो क्या कह सकते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ माइंड, जो एक इमोशनल माइंड होता है, एक रीजनिंग माइंड होता है, और एक वाइज माइंड। हम्म। उससे भी कर सकते हैं कि मतलब हर ये तीनों एस्पेक्ट्स रहते हैं। इनफैक्ट लोगोस, एथोस और पैथोस से भी कर सकते हैं हम्म। कनेक्ट। कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब फंडामेंटली माइंड क्या है? The faculty which creates हम्म, thoughts. ओके। अच्छा, जो हमने पढ़ा था वो सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, इसी बुक में पढ़ा था कुछ पहले के चैप्टर्स में। माइंड को ऐसे उन्होंने मतलब ये किया है, डायसेक्ट किया है। इसमें अगर हम इस तरह से देखें, जैसे कि जो सदगुरु जी की ईशा क्रिया है, तो उनका जो चैंट है वो ये है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट इवन दिस माइंड। तो वो कहते हैं कि जैसे बॉडी क्या है, बॉडी सम टोटल ऑफ ऑल द जो भी हमने कंज्यूम किया है बचपन से लेके अब तक, उसके इम्प्रेशन से सारी बॉडी बन गई। ऐसे जो भी सारे बाहर के इम्प्रेशन हमारे ऊपर आए हैं मेंटली, वो सारा माइंड कहलाता है। तो माइंड इज द सम टोटल ऑफ इम्प्रेशन ऑफ द सोशल इम्प्रेशन, देखा जाए तो। ये बहुत ही एनलाइटनिंग थॉट हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम जो कह रहे हैं कि मेरा फियर, मेरी वरी, तो इसमें एक्चुअली मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ borrowed है। जैसे इन्होंने मूवी का एग्जांपल लिया, मूवी नहीं देखी तो किसी का सुना होगा, किसी से, दोस्तों से सुना होगा, घर में सुना होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहा जाता है कि देयर इज नो ओरिजिनल थॉट बेसिकली। जो भी थॉट हमारे पास आ रहा है सारा borrowed है, बस हमने अच्छे से रिसाइकिल कर लिया है, इसलिए वी कैन प्रोजेक्ट अवर सेल्फ एज ए ओरिजिनल थिंकर, बट वी आर नॉट एंड वी कांट बी। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जिस जो हमारा माइंड है या जो मेरी सोचने की फैकल्टी है, इसमें सब कुछ इम्प्रेशन ये borrowed है, मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। तो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट इवन दिस माइंड, मतलब जो भी इम्प्रेशन है मेरे ऊपर सबसे मैं अलग हूँ। इंटरेस्टिंग है ये आइडिया। मतलब कि अपने माइंड से ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि जो भी माइंड में आ रहा है, मतलब उसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि कोई और ही है बस, एंड इट हैज बीन सब्जेक्ट टू ऑल द इम्प्रेशंस, ऑल द इन्फ्लुएंसेस, एवरीथिंग। लाइक अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, हाँ। जो हम बोलते हैं। अगर यही माइंड यूरोप में हुआ होता, पैदा अफ्रीका में होता, तो ये वैसे सोचता। इसके लिए हिंदुइज्म कोई मायने नहीं रखता। तो बस ये सर्कमस्टेंशियल है ये। हाँ जी, इफ अवेयरनेस। If awareness was on the floor of reason, it would reason its way down the street. But if it was on the fear floor, it would send terror through your body and nervous system. One floor above reason is willpower. And if awareness was on this floor, it would muster courage and walk fearlessly down the street. One floor below fear is anger. And here, awareness may be angry at itself for getting into such a position. Where awareness is in the mind, where awareness is in the mind determines our perspective. It determines how we see things, how we respond to experiences, how we react to life, how we feel.
It determines everything. Can you see now why understanding awareness and the mind is so critical? बहुत ही अच्छा ये पैराग्राफ है ये। Hmm. मतलब पूरा एक ग्राफिक बन जाएगा इसका, बहुत अच्छा सा एक Hmm. डायग्राम बना सकते हैं ऐसा कि कितने फ्लोर हैं और कहाँ पे क्या रहता है। बहुत ही अच्छा है ये। तो But इसमें why is anger below fear? क्या लगता है आपको, बताइए। मतलब ऐसा हो सकता है कि फियर की वजह से एंगर हुआ, तो एंगर ऊपर आना चाहिए ना, ऊपर के लेवल पे आएगा नहीं। मे बी, मतलब इट डिपेंड्स। लेकिन शायद उन्होंने एंगर को नीचे इसलिए रखा है क्योंकि एंगर थोड़ा ग्रॉस है और Okay. फियर सटल है थोड़ा। तो शायद ये थोड़ा सटल Hmm. के साइड में बढ़ते जा रहे हैं, या लेस इंटेंस होते जा रही है चीज़ें, उस तरह से जा रहे हैं ये। अब जैसे सपोज हेट्रेड होता तो कहाँ था, शायद वो एंगर और फियर के बीच में आता, या वो फियर कौन से। सा? हेट्रेड Hatred. तो It would be below anger, in fact. Hmm. मतलब वे बिलो, ये अच्छी है ना? एक्सरसाइज है एक्चुअली। मतलब ये करा सकते हैं कहीं, जैसे ट्रेनिंग में कहीं आपको कराना हो फ्यूचर में कहीं, तो हम्म। आपने सारे लिख दिए ये सारे इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, और एक पिरामिड जैसा बना दिया या फ्लोर बना दिए, और सबको फिट करना है और सबको टास्क दे दिया। तो कोई इसे फर्स्ट फ्लोर में किसी को रखेगा, फिर जो जिस फ्लोर में रखेगा उनकी रीजनिंग पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों रखा। तो इट कैन बी अ गुड 1 आवर एक्टिविटी फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। और ये मतलब नई भी होगी इन सेंस, ओरिजिनल आइडिया borrowed फ्रॉम ए बुक। मतलब ऐसा सच ये ट्रेनिंग आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसे ट्रेनिंग आइडिया बना सकते हैं। The first step in overcoming fear is moving awareness out of the fear area of the mind with our will and powers of concentration. This then provides us with the opportunity to begin to examine what is the root cause of that fear. You can't understand fear while you are in fear. Those who fathom the power of the mind are highly protective of it. If the fear area of the mind is nurtured, then that will that will be one of the default places that awareness goes to in challenging situations. Poor decisions are made here, resulting in even poorer outcomes. Therefore, you would avoid doing anything that would nurture that area of the mind, such as watching scary movies. Most kitchen sinks have a strainer to prevent food waste from going into the drain pipe and clogging it up. If we do that for our kitchen sink to protect our pipes, should we not have a strainer to prevent trash from entering our mind and clogging it up? Protect your mind at all costs. Your mind is your greatest asset. Be wisely discriminating as to what you allow into it and what you allow to breed in it. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ये जैसे एनएलपी में भी यूज होता है, कॉग्निटिव फिल्टर्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आता है हमारे माइंड की तरफ, लेकिन उसमें से कितना कम ही फिल्टर होकर अंदर जाता है, और वो फिल्टर भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। हम अगर देखें तो एक्चुअली ऐसे लोग हम देख सकते हैं अपने आसपास, दोनों तरह के ही लोग, कि उनकी अवेयरनेस एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती है दिन भर। मतलब या तो वो जैसे वरी ही कर रहे हैं, या हर बात में वो जैसे अपसेट ही रहते हैं हर बात में बिना किसी वजह के, क्योंकि उनकी अवेयरनेस वहाँ पे या तो इतनी बार बार गई है कि वो वहीं, उसका ग्रेविटेशनल पुल जैसा वहीं बन गया है, वो वहीं चली जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे कुछ भी गलत हो जाए वो हमेशा खुश रहते हैं। वो कहते हैं तो क्या हो गया, फिर सही हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें जो भी तरीके हम अपनाते हैं वो सारी बात यही है कि हमारी अवेयरनेस कहाँ पर है, हमारी स्मृति कहाँ पर है, और जैसी स्मृति होगी वैसी समृद्धि आ जाती है, फिर उस तरह से इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा मॉडल है समझने का कि अवेयरनेस जहाँ जा रही है वही हमें इमोशन फील हो रहा है फिर। और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम अच्छे मूड में रहने वाले ही पर्सन हैं, लेकिन किसी दिन अचानक से हमारा मूड लो हो गया, अपसेट हो गए, तो हम चेक कर सकते हैं कि अवेयरनेस हमारी किस एरिया में है माइंड में और वहाँ क्यों गई है, क्या ट्रिगर हुआ है। हो सकता है वो बहुत ही ऐसा ट्रिगर हो जो हमने नोटिस भी नहीं किया हो। किसी ने कोई गाना सुना, किसी को किसी से कोई बात याद आ गई, या हमने न्यूज़ में कुछ पढ़ा, फिर हमें अपना कुछ वैसा सेम याद आ गया, और फिर दिन भर वो चले जा रहा है चले जा रहा है, वो विशियस साइकिल बन गई। इसलिए इस बात की सिग्निफिकेंस है ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, ताकि मतलब अगर कोई चीज़ चल भी रही है तो हर घंटे चेक हो जाए, अगर हम उतने अवेयर हैं तो। लेकिन नहीं अवेयर होंगे तो वो भी चलता रहेगा। Then there are bullies, instinctive minded people who relish making others feel fear by repeatedly taking their awareness to the fear area of the mind. ये तो हमने मतलब खुद कुछ देखा वैसे उसके लिए अब बता रहे हैं कि आसपास के लोगों के हिसाब से कि then there are bullies, instinctive minded people who relish making others feel fear by repeatedly taking their awareness to the fear area of the mind. Unbeknownst to them, they are creating a well formed path to fear in the minds of their victims. The most ignorant of these bullies, the cowards of society, do it to children, unaware that the mind of a child is deeply impressionable and that these repeated acts will create patterns that can and often do last a lifetime. These patterns of fear can dictate decision making and alter the way that child will live their life. Bullies have essentially taken this child to the precipice of all lower emotions and left their undeveloped mind at the mercy of their base nature, sentencing them to a possible life of living in a lower consciousness. This is one of the worst things that can be done to a child. One of the first steps in uplifting human consciousness is to get people out of experiencing fear in their life. जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक तो क्लासिकल एग्जाम्पल एग्जाम का ही है। बच्चों को जैसे पता भी नहीं होगा कि फियर क्या होता है, लेकिन सो कॉल्ड बड़े पेरेंट्स एडल्ट्स उन्हें सिखाते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा कल एग्जाम है, तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है, कल एग्जाम है, क्या होगा फेल हो जाओगे तो मे बी ऑल बिहेवियर हैज गुड इंटेंशन प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। और भी जैसे कि कई लोगों का क्या है ना, जैसे कि सपोज कोई ज्योतिषी को बहुत ज़्यादा मानता है, अब ये नहीं कह रहे गलत है या सही है, लेकिन उनकी अवेयरनेस वहीं ही होती है हर समय। वो कुछ भी नया करेंगे तो सोचेंगे कि ये घर देख लो ठीक है कि नहीं, हर चीज़ का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सही है कि नहीं। और कुछ भी जैसे प्रॉब्लम आएगी या कुछ हेल्थ में आ रहा है तो सोचेंगे कि अच्छा तुमने कौन से दिन ये वाला काम किया था, तुमने वो कौन सी कलर की दिन भी हाँ। समय भी टाइम भी पूछते हैं बहुत लोग, टाइम देख कर इसी टाइम में ही करेंगे। हाँ तो इट में है, इट में हैव सम साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड इट। इवन देन अवेयरनेस अगर वहीं ही है सिर्फ तो और कहीं जा ही नहीं सकती, कुछ और वो सोच ही नहीं पाएंगे, और वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर गिव अप कर देते हैं, वहां दे देते हैं सारी। मतलब वो हम कह रहे थे ना, आइस क्यूब को वो आइसबर्ग बना देते हैं, है उसका इफेक्ट आइस क्यूब जितना है, लेकिन आइसबर्ग क्यों बनाना है, मैग्नीफाई क्यों करना है, मैग्निफिकेशन का उनका ऐसा संस्कार बन जाता है। एक चीज जो हम लोग करते हैं, आई हैव अ 2.5 year old डॉटर, तो उसको खाना खिलाने के लिए मतलब वो ऐसे बहुत मुश्किल होता है इसको खिलाना, तो वी हैव सम फिक्टिशियस कैरेक्टर्स, तो उसका नाम लेकर के, मतलब शी इज स्कैर्ड ऑफ दोज कैरेक्टर्स, तो उसका नाम लेके हम उसको खाना खिलाते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि आई थिंक वी आर ऑल्सो डूइंग दिस।
मतलब अदरवाइज उसको खाना खिलाने में आपको 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, बट उसको थोड़ा हम ऐसे डरा के खिलाते तो 15-20 मिनट में वो खा लेती है। तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा, आई थिंक। क्या अगर आप इस सिचुएशन में शिवानी बहन होते तो क्या कहते हैं? शिवानी बहन होते तो क्या करते हो? क्या कहते? इस डिस्कशन को सुन के वो क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या क्या कहते हैं? आप ब्लेसिंग्स दे रहे, मतलब वो बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं वो ब्लेसिंग थॉट्स फूड में जाते हैं। और तो वो ये कहते हैं कि आपके बच्चे ने खाना तो खा लिया 15-20 मिनट्स में, बॉडी का नरिशमेंट मिल गया विच यू आर कंसर्न्ड अबाउट, दैट्स राइट, बट यू आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट हर मेंटल हेल्थ। तो आपने वो उसको फियर वाला डोज दिया, हम्म। आर यू ओके विद दिस ऑल्सो? अगर वो पर्टिकुलर एज तक 10 ईयर्स तक 18 ईयर्स तक फियर का इमोशन कंज्यूम करे तो आर यू ओके विद दैट? एक हम्म। ऐसा पर्सन जो फिजिकली हेल्दी है लेकिन मेंटली फियर में है, तो क्या हम एक ऐसा चाइल्ड ग्रो करना चाहेंगे? तो हमारा आंसर नो होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भले 30 मिनट लगे, लेकिन क्या कोई अल्टरनेटिव तरीका है? हम्म। देखो, टाइम तो कभी ना कभी बच्चे पे देना ही पड़ेगा, अब नहीं देंगे तो बाद में फिर और चीज़ों में देना पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए। तो घूम के तो पूरी बात वहीं आ जाएगी। बाकी हम्म। चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बहुत क्रिएटिव आंसर्स रहते हैं उसके पास। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव वेज टू फीड माई चाइल्ड? इससे चैट चैट जीपीटी। जीपीटी से अच्छा। एडीपीटी। हाँ हाँ। सच में उसमें अच्छे अच्छे आंसर आते हैं। हम्म। तो ये भी है ना कि अभी कई बार हमारा, जैसे कि कोई हम मुश्किल तरीके से मुश्किल काम कर रहे थे, फिर हमें कोई आसानी चीज़ मिल जाए, तो भी माइंड का नेचर ये है कि वो आसान चीज़ पे नहीं जाएगा एकदम से, क्योंकि उसको मुश्किल तरीके से काम करने का बहुत लंबा संस्कार है। तो ये भी हम पूछ सकते हैं कि क्या हम चैट जीपीटी अभी डेली यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, या हम भी लंबा रूट ले रहे हैं? एक मिनट। हाँ जी। ठीक है, तो मीनवाइल हम आगे बढ़ सकते हैं। इन समरी, Iqbal, I would like to read the previous paragraph again because Saurabh is also here and it's related to. ओके, कॉमन इंटरेस्ट। Then there are bullies, instinctive minded people who relish making others feel fear by repeatedly taking their awareness to the fear area of the mind. Unbeknownst to them, they are creating a well formed path to fear in the minds of their victims. The most ignorant of these bullies, the cowards of society, do it to children, unaware that mind of a child is deeply impressionable and that these repeated acts will create patterns that can and often do last a lifetime. These patterns of fear can dictate decision making and alter the way that child will live their life. Bullies have essentially taken this child to the precipice of all lower emotions and left their undeveloped mind at the mercy of their base nature, sentencing them to a possible life of living in lower consciousness. This is one of the worst things that can be done to a child. One of the first steps in uplifting human consciousness is to get people out of experiencing fear in their life. हाँ जी। In some summary, every time you find awareness going into the future and creating a situation in your mind that causes you to feel fear, use your indomitable willpower to bring awareness back to the present and use your powers of concentration to hold awareness in the here and now. By all means, do not let your awareness reenact that situation repeatedly and compound the feeling of fear in you. If the fear you see in your mind has a strong possibility of manifesting itself, then find solutions to ensure that it does not happen.
Seek support if needed. Affirm to yourself, as my guru did as a child, I am all right now. या ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का हो गया 9.3। कुछ पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने अंडरलाइन किए हैं। हाँ जी, तो कोई भी समराइज कर सकता है पॉइंट्स जो भी आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि जैसे वरी हमने देखा कि फ्यूचर बेस्ड है, वैसे फियर इज ऑल्सो फ्यूचर बेस्ड. The only place fear lives is in the future. And एक इसमें इन्होंने ग्रूव्स की बात की थी, पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द सबकॉन्शियस. सो इन्होंने एक स्टोरी का एग्जांपल दिया था कि व्हेन यू आर वॉकिंग इन अ silent dark night alone, and if you watch a lot of scary movies, then the grooves get created in your mind where the awareness goes to the fear area. तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप आते हो, वो फेस करते हो, तो नेचुरली आपका वो उस ग्रूव एरिया में चला जाता है अवेयरनेस, एंड देन यू आर एक्चुअली पुटिंग योर awareness to the environment mercy. Past experience in the subconscious that have not been dealt with can cause awareness to repeatedly experience fear. और पास्ट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं कोई भी कॉन्टेक्स्ट में which has been registered in your subconscious, and when you face something like that, that can also cause fear to recur, compound upon one another, and that's how the wheel of fear gets created, pattern after pattern. I have actually faced this repeatedly. We had scary movies marathon some 10 years back. We used to watch with friends. One family used to come and we used to watch बहुत सारी horror movies हम आराम से देखते थे. So after almost 1 or 2 months, after a point, I think 1 or 2 months भी नहीं, 3-4 महीने शायद हमने देखा होगा. Not every night, but हाँ काफी frequent, every weekend sort of. And since that family couple family also used to come, तो then उसके बाद I had such horrible nightmares. Then I stopped कि अब मैं वो ऐसा कुछ देख ही नहीं सकती और ना मुझे सुनना है, ऐसी conversation भी होती है. I just walk out because I faced वो nightmares and I was not able to sleep. I was not able to go to a place where it was very lonely, मतलब solitude वाला. When awareness is anchored in the here and now, in the present, it can perhaps decide to choose an alternate route, to call a friend or a car service. तो इसी सिचुएशन में उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसा है तो you can anchor your awareness in the present and decide to choose कि आप कुछ और कर सकते हो, या तो आप कोई फ्रेंड को बुला सकते हो, you can call a car service or find any alternative to avoid this experience of walking down the street all by yourself alone. But if you don't do that and you leave your awareness there, that means you're allowing your mind to be there, mental state to be absorbed in that fear. The fear state of mind has no capability to make rational decisions, and then you can't make any rational decisions. तो इसमें इन्होंने example दिया है, एक analogy कि if you see mind as a multi-story building, fear is there is a reasoning. So reasoning is 2 story above fear, और फियर के और रीजनिंग के ऊपर भी विल पावर है, उन्होंने ये बताया. तो एंड द पर्सपेक्टिव और द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट. उन्होंने बोला कि अगर कोई डिवाइस सिस्टम नहीं है, सपोज स्टेयर्स होते हैं या फिर कनेक्टिविटी जो होती है वो भी नहीं है, तो यू कांट रीच. और फियर के जब अवेयरनेस इज इन द फियर, you need a device to reach to that level, to the reasoning level.
the fear we experience is a self protective mechanism. तो at times उन्होंने ये बोला है कि fear can also be a self protective mechanism, but and we can use it to avoid a harmful experience. लेकिन अगर हमने उसको अलाउ किया कि और फर्दर ग्रो करने के लिए नर्चर किया, then it dominates our awareness, and then things start to going to hell in a handbasket. इसमें एक बात ये भी हो सकती है, जैसे कई लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है, क्या हमेशा अच्छा है या हमेशा बुरा है, तो उसका आंसर हम क्या करेंगे, कोई अगर हमसे पूछे तो? एटॉमिक हैबिट्स वाला वो बता सकते हैं कि एक लेवल ऑफ सर्टेन जो हम सस्टेन कर सकते हैं, जो विच इज चैलेंजिंग ऑल्सो एंड दैट वी कैन डू। या हम ऐसा करें कि स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का ग्राफ बनाएं, तो वो कैसा होगा? आप म्यूट हैं आकृति से भी। जब तक उस स्ट्रेस से हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तब तक वो अच्छा है, बट एज सुन एज वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हो रहा है कि परफॉर्मेंस मेरा डाउन हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली परफॉर्म व्हाट आई वांट टू डू, मतलब तब वो स्ट्रेस मतलब आई हैव created too much stress and now it is started to affecting my performance, तब वो अच्छा नहीं है। Yes. तो इसको हम ऐसे भी समझते हैं, लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, कि कोई भी टू वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच का जो कोरिलेशन हो सकता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? प्रोपोर्शनल हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, और क्या हो सकता है? एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ग्राफ पे प्लॉटिंग करने के पर्पज से क्या क्या हो सकता है? और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। एक लेवल तक इंक्रीज करेगा फिर डिप भी कर सकता है, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा परफॉर्मेंस डिप करता जा सकता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कैसे प्लॉट करेंगे, क्या कह सकते हैं? उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। बेल कर्व होता है एक। बेल कर्व, राइट। बेल जैसे मंदिर की घंटी होती है, मतलब पहले वो ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा प्लेट्यू जैसा बना, फिर वो नीचे आना शुरू हो गया। मतलब स्ट्रेस आप बढ़ाते जा रहे हो तो परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी सर्टेन लेवल तक, एक जगह आके वो स्टेगनेट हो जाएगी, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। किसी को इतना मत दबाओ, किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि फिर वो एक टाइम तक तो वो दबता जाएगा, फिर वो रिबेल करेगा। तो जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत ये चीज़ें यूज होती हैं कि जो रिकवरी इकोनॉमी की वो वी शेप रिकवरी है, डब्ल्यू शेप रिकवरी है। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब हम समझ सकते हैं कि ग्राफ पे चीज़ें कैसे, या जो कर्व है डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैसे आते हैं, कोरिलेशन को कैसे बताते हैं। और एक बहुत मेन टेक अवेयर तो रहा हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कौन कहाँ रहता है, अवेयरनेस कहाँ कहाँ जाती है। और एक इन्होंने कहा कि मतलब बहुत जतन करके भी इसको संभालना है, माइंड को भी, अवेयरनेस को भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब हम किचन में इतना ध्यान रखते हैं कि वो क्लॉग ना हो जाए, तो प्रोटेक्ट योर माइंड एट ऑल कॉस्ट, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। बी वाइजली डिस्क्रिमिनेटिंग एज टू व्हाट यू अलाउ इनटू इट एंड व्हाट यू अलाउ टू ब्रीड इन इट। तो ये वाइजली डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी कैसे हमारी डेवलप हो, मतलब कि परखने की शक्ति कैसे आए? परखने की शक्ति का आधार क्या है, क्या कह सकते हैं? फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। हम्म। आई थिंक तो अवेयरनेस कहाँ पे है उसको। बाद में भी कई बार हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाउ एम आई फीलिंग, एंड इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड देन वी कैन ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन कि आज क्या क्या किया था, एंड
उसके बेसिस पे मे बी वी आर एबल टू फाइंड आउट कि अच्छा आज हमने कुछ ऐसा हॉरर मूवी कुछ देखी थी, इस वजह से शायद ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. दैट में हेल्प इन मतलब कि इन गोइंग फॉरवर्ड वी डोंट इंडल्ज इन वॉचिंग हॉरर मूवीज. इसमें एक बात ये भी कह सकते हैं कि जैसे कॉज एंड इफेक्ट का जो कोरिलेशन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही इसको देख रहे हैं, ये बहुत हजारों साल से लोग इस पे काम करते आए हैं, तो एस्टेब्लिश है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस. वी कैन पे अटेंशन टू देम एंड वी कैन लर्न फ्रॉम देम एज वेल. इसीलिए रीडिंग, रिफ्लेक्शन, लर्निंग, ये सब इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है जी, आज इतने ही रखें. ऑल राइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.